और यू नो दी आंसर्स कि वो ब्रेक हो गए। सो गल हुण 47 की चल रही है, फिर उस तो बाद देखना की होया जब प्रोमिसेस ब्रेक हो गई। की ब्रेक होया? पंडित नेहरू कह रहा हुण तां असीं जी पंजाबी सूबा बना ही नहीं सकते, आउट ऑफ द क्वेश्चन। In fact, Vallabhbhai Patel, who was the first Home Minister of India, Home Ministers are in charge of securities. Generally, in Indian politics, their mettle is tested by making them Home Ministers first and then they become Prime Ministers. Rao was the same thing in 84. Rao was the Home Minister. Later he became the Prime Minister. Oh, when Pakistan was created at the time of partition, it became crystal clear that there remained only one community in India. सो उन्होंने का दोगलापन बेसिकली हिंदुस्तान का बाहर आ रहा है 47 तो एकदम बाद ही। सो सिखा दे लई एक्चुअली सिखा दे छड्डो हिंदुस्तानियों के लिए भी इट वॉज नैवर इंडिपेंडेंस डे, इट वॉज ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट। टैक्नीकल एक्ट भी ये है ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट। एलीट हिंदूज को ਜਿਹੜੇ अपर मिडल क्लास हिंदू सीगे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रांसफर कर दी गई सी पावर। And then in 1950 they adopted a constitution. They ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ statements ਦੇਖੋ ਕੀ ਨੇ। Sikhs have missed the bus, times have changed. You heard all these things. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਇਨ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। In fact, Nehru, according to Sangat Singh, even said, how can I entrust power to the enemy? What is known at the time is that Sikhs, even in the army at the time, 60% of INA was Sikhs, Indian National Army. Sikhs were on the both sides. By the way, this is a great lesson. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਵੱਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਐਲਾਈਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। INA was not part of the allies. 60% INA is Sikhs. General Mohan Singh is the founder, but everyone says it's Subhash Chandra Bose. अपना नैरेटिव नहीं ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ। जनरल मोहन सिंह को पहला फील्ड मार्शल बनाना सीगा। नेहरू ऑन द डे ऑफ 15 अगस्त की परेड कट रहे थे, वो कहता नहीं सिख को नहीं बना सकते मैडल किसी होर से लाता, बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। कपूर सिंह दिया होरां दे स्टेटमेंट्स बड़े जो मेन स्टेटमेंट तुहाडे नाल मैं शेयर करना चाहता सानू ना जिवें असीं 18th सेंचुरी विच कहंदे आ ना, देखो कि जदों लिख रहे हैं कि कुत्ते एक दिन राज करनगे, तुहाडा एनमी आई बोलदा कुत्ते कहंदे सी सानू, राइट? अफगानी दे नाल सी जिहड़ा। हुण तुसीं इंदिरा गांधी नूं देखो, ओहदा स्टेटमेंट की है, द कांग्रेस फाउंड इटसेल्फ इन अ डिलेमा। ये गल कर रही है पंजाबी पंजाब नूं सूबा बनाउण दी। टू कंसीड टू अकाली डिमांड वुड मीन अबैंडनिंग अ पोजीशन टू विच इट वाज फर्मली कमिटेड एंड लेटिंग डाउन इट्स हिंदू सपोर्टर्स इन पंजाबी सूबा। द मेरिट्स वर नो कंसिडरेशन। This is Indira Gandhi saying. And as the policy of the Congress, as enunciated in 49 by Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and Pattabhai, had been not to concede the reorganization of North India, whatever the merit of such a proposal might be. Basic गल कह रही है जब हिंदुस्तान आजाद होया, नवा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने all the 6 rejected it लागू करा लिया। पंजाब तो लैके which they call it Republic Day, I think we have to reconsider again. उन्होंने लिए तो रिपब्लिक है, गणतंत्र। साडे लिए रिपब्लिक किवें है? When we were promised that constitution will not be acceptable unless Sikh party representatives. Sikh party representatives is very important because they did find individual Sikhs to sign it, but no Akali representative signed it. That's the critical part. हुण तुसीं बिकाऊ माल तो हर कौम चाहुंदा। अमेरिका च भी call them house negroes. Just because एक दो Sikhs sign कर देंगे doesn't mean Sikhs have signed it. The official Akali representatives never signed it. And इंदिरा गांधी कह रही है ये तो शुरू तो ही पता सी मेरे प्यो दी ते पटेल दी ते गांधी दी पॉलिसी सी कि सिखां दी कोई डिमांड नहीं माननी, वो आप लिख रही है। So they are very clear what they are after. We keep debating कि इदां होया सी कि तारा सिंह वाड़ा सी कि बलदेव सिंह विंगिया सी, अजे इत्थे ही खड़े सी। ये ओवर सिंपलीफिकेशन है। थोड़ा जिहा असीं कहाँ जाइए कि चल की रहा है। They have been very clear. इंदिरा गांधी 1970 ट्रिब्यून दे विच एक ओहदा स्टेटमेंट छपया, नेहरू वाज स्ट्रांगली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ पंजाबी स्टेट। सो एवें नहीं है कि 1950 विच पूरे इंडिया विच सारियां नूं स्टेटहुड दे दिता गया, बट 50 तो लैके 66 16 साल का नॉन वायलेंट मूवमेंट पंजाबियों ने किया टू जस्ट रैकगनाइज
or gets Punjab a statehood. क्वेश्चन ये है, मैं अर्लियर कहा था कि असी वायलेंट है, ये वाल थोड़ा चलीए। 47 तो लैके 84 तक की हो रहा, मैं क्विकली करा। पार्टीशन हो गई, कपूर सिंह नूं उत्ते गलत केस बना के, ये आम ही होंदा। इफ यू हैव अ गुड पर्सन हु नोज व्हाट्स हैपनिंग, कपूर दे अगेंस्ट भी केस बना के उन्होंने दरखास्त करता। सिखा ने रिजेक्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन, पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाने का रेजोल्यूशन बनाया, अमृतसर में फंक्शंस बैन करते सरकार ने। फिर जनसंघ मेंबर, जनसंघ इज अ प्रीकर्सर टू टुडेज बीजेपी। जनसंघ मेंबर्स passed a resolution in Jalandhar actually. This is space नहीं है इस करके मैंने लिखा नहीं, but resolution actually included our women will not go to दरबार साहब complex to do सुखमनी साहब, क्योंकि हिंदू जनानियां सुखमनी साहब करने जाती हैं उस वेले। कहते अपनी जनानियां को रोको कि उत्थे जाके सुखमनी साहब का पाठ ना करन, ते उत्थे उन्होंने पहला गुरुद्वारा चलाया जनसंघ मेंबर्स ने 1958। कीप लुकिंग एट दिस। पंजाबी सूबा मूवमेंट शुरू होया मई 60 ਵਿੱਚ। सिखा ने स्लेवरी डे मनाया 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ कहना अतवादी हो 84 तो बाद ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, वायलेंट बन गए। That's not our history, that's not our narrative, that's not even a recorded fact. Recorded fact is Sikhs knew en masse, and I'll show you the numbers in a minute, किन्ना ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜੀ 10 15 100 1000 ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ। We'll show you the numbers. Sikhs knew that they were slaves back then even. Hindus protested against Punjabi Suba, attacked Sikhs and looted property. All sorts of things are going. Shromani Akali Dal ne fir reorganization bill nu reject kiya. Eventually 66 November ਦੇ Punjabi Suba movement ਬਣਿਆ। 68 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੈਰੂਮਾਲ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਵਾਇਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਤ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਹਵਨ ਕੁੰਡ ਹੋਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅੰਡਰ ਸੀਜ ਜਸਟ ਟੁਡੇ। Every government tries to put it under siege. British did it, Afghani did it, Indians are doing it also. They hire your and my political and spiritual representative to control us. This should be very clear. Guru Nanak Sahib has written this. एक कन्फ्यूजन सानू बड़ा तगड़ा ना कि साडे रिप्रेजेंटेटिव ने कित्थों हो गए, ना तुसीं वो चूज कीते, ना तुसीं उन्हां नूं इन्फ्लुएंस कर सकदे हो। जे हुक्मनामा साडे खिलाफ आ जाए आपां कहंदे जत्थेदारी है नहीं जी, जे साडे हक दा आ जाए देखो जी अकाल तख्त दा हुक्म नहीं मनदे, असीं दोगले बन गए। We are not clear what is happening. We have to be clear. Enlightenment बड़ा ज्ञानी वाला ना गुरबाणी च वो लैके आओ। दर्शन सिंह फेरूमाल protested against it and he died actually protesting. We should remember these names. Anandpur Sahib resolution pass होया, मोर्चा होया again emergency दे against. This is a question जेड़ा why है ना, why Sikhs are the targets. 77 दे विच emergency India च आई, there were individuals who opposed it. No political party opposed it except the Akalis. George Fernandez opposed it, but back then he was a union leader, not part of BJP. ये बहुत इंपॉर्टेंट गल है। पूरे हिंदुस्तान दे विच जब सेमा डिक्टेटोरियल, रिमेंबर द फर्स्ट थिंग कि स्टेट यूजेस इट्स पावर एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स टू कवर अप लॉट्स ऑफ थिंग्स। 77 में इमरजेंसी लगी है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ सिख पॉलिटिकल पार्टी ऑब्जेक्ट कर रही है। ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू हैव इश्यूज। क्वेश्चन की बात चाहोगे जी हाफ फड़ कर 78 का तुहानू अमृतसर का मैसेकर का पता ही है। पंजाब एंड सिंध बैंक नू ओवरनाइट नेशनलाइज कर दिता गया कि सिखों ने कोल इकोनॉमिक पावर ज्यादा जा रही है। They created a whole bill in the parliament to nationalize banks in India. Target was Punjab and Sindh Bank. It happened in 1980. अकालियां ने ते होरां ने रेजोल्यूशन पास की ते एजिटेशन शुरू हुई जिन्हों से धर्म युद्ध मोर्चा कहते हैं 1982 दे विच। And you know what happened in June 84. This is our history. 47 to 84, not a single act of violence by the Sikhs. And you know what the numbers look like? Look at this. What the Sikhs are doing and what the India is doing. ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ protest ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ। 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। This is no small feat, guys. This is the history. Sikh history is, and then 47 to लहके 84 तक
टोटल नॉन वायलेंट मूवमेंट, कोई एक्ट ही नहीं मिलता वायलेंस का सिखा के एंगल तो, बट गवर्नमेंट के एंगल तो बड़ा कुछ है, सम वायलेंट एक्ट। इनफैक्ट लॉट ऑफ यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ द पौंटा साहब मैसेकर ऑफ 1964। यह जे बड़े ने, ये तो थोड़े हाईलाइट देने लिए दिखाए ने कि किस तरीके नाल वायलेंस को एक्साइट किया जा रहा बाय एंटी सिख सेंटिमेंट्स। बट सिक्स आर वेरी रिस्ट्रेन, अपने बंदे को एवं असं गुस्सा करिए, वो विक्टिम मेंटालिटी से कहते हैं जी आप भी बड़ी छेती हथियार चक लें, नहीं इदा नहीं है। इनफैक्ट सिख की जी डिक्टम हैगी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दी हुई कि असी तो सारे तरीकों वरतांगे, जब कोई तरीका कम नहीं आओ तो फिर तलवार भी चकांगे, शमशीर भी चकांगे। एंड सिक्स डिड इट, दिस इज अ हिस्ट्री। I mean 47 to 84 is, I would say, a pretty long time. In 84 which we, जब फिर बैटल हुई उसकी मैं गल करा आगे जाके 84 दी, बट आई वांटेड यू टू नो कि की चल रहा है। लुक एट दीज नंबर्स, 10,000 अरेस्ट, 4,000 अरेस्ट, 3,000 अरेस्ट, ये छोटियां मोटियां गल्लां नहीं है, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾय ਦ ਵੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ, 1918 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 100 ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। उदन गांधी ते नेहरू ते सारे बैठे, कहते यार ये सिखा नाल लाओ, अपने तो बंदे नहीं आते, इन्ना तो 2-2 लाख बंदा फ्रीडम नहीं लड़ रहा। दिस इज आवर हिस्ट्री, वी हैव ऑलवेज डन इट फॉर फ्रीडम। एंड दैट्स व्हेन गांधी सॉ कि नॉन वायलेंट मूवमेंट मैसेज विच किवें जाएगा, सबको क्रेडिट नहीं मिलता। एंड द लीडर एट द टाइम वाज बाबा खड़क सिंह। वी मस्ट ऑल रीड अबाउट व्हाट ही डिड। ही वाज द हेड ऑफ श्रोमणी अकाली दल एट द टाइम। सॉरी, ईयर इज नॉट 1918, 1921 या 22 है। The point is, Sikhs have a history of non-violent movement. Once we try and try and try, we are not the people who say let's keep giving the other cheek every time. In fact, इत्थे मैं एक बार और introduce करदा, there is a huge difference between non-violence of the weak versus the non-violence of the strong. सिखां दी हैगी non-violence of the strong. कि असी गुरु नूं अपना promise कीता सी सारे तरीके अपनावांगे। We can kick your ass today, but we'll wait to see if other methods will work. Whereas non-violence, the weak says, यार असि कुछ कर ही नहीं सकते, इस करके मारी जाओ सबको। गुरु के बाद मोर्चे में यही लिखता CF एंड्रूज भी कि 3 सिखा नूं 4 इंडियन पुलिसमैन मार रहे हैं, ये सिख उन्होंने कदे भी कुट सकते हैं, बट अज इन्होंने अरदास की कि नहीं तुसीं अज मारो जितना मर्जी। And this is our history. Let's get familiar with our history. This is all pre-84. सो बिटर रियलिटी की है कि साडे लीडर ने वो कैप्चर कर ली थी। 47 में भी कैप्चर की थी। मास्टर दारा सिंह का स्टेटमेंट है, बड़ा सिंपल स्टेटमेंट है, कहते व्हाट हैपेंड इन इंडिया इज वेरी सिंपल, ओनली द मास्टर्स हैव चेंज। कि पहला चिट्टे मास्टर सी, हुण काले मास्टर्स हो गए। ही इज वेरी क्लियर इन स्टेटमेंट इन 1953। यही गल दर्शन सिंह फेरूमान 1969 में लिख रहे हैं, कहते हैं माई कंट्री इज फ्री नाउ बट माई पंथ इज स्लेव। ये बंदे खाड़कू जिवें आपां लैंदे कि है नहीं कि वो तोड़न फोड़न ते मार धड़ च लगे हुए सी, नहीं, बड़े इनसाइटफुल बंदे ने, डील कर रहे हैं इशूज़ के नाल। ठीक है, दे माइट हैव मेड अदर मिस्टेक्स, बट दे आर वेरी क्लीयर कि इंडिया दे विच जिहड़ी पॉलिसी सिखां दे अगेंस्ट ते पंजाब दे अगेंस्ट डिवेलप कीतियां जा रही डिस्क्रिमिनेशन दियां, दे आर ट्रीटिंग सिक्स एज सेकंड क्लास सिटीजन्स। एंड गुरबाणी विच आया कि स्टेबिलिटी जब तक नहीं आ सकती, स्टेबिलिटी, पोलिटिकल स्टेबिलिटी कायम दायम सदा पातशाही, कब जब डोम न सेम। जे सैकेंड या थर्ड क्लास सिटीजन होंगे किसी भी दुनिया के विच, तब तक पोलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। एनीवेयर यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड। ये बेगमपुरा शहर को नाम शब्द है, मतलब माई फेवरेट शब्द वो लाइन है, सिटी विदाउट सैरो कैन नॉट एग्जिस्ट, स्टेबिलिटी कैन नॉट एग्जिस्ट when somebody feels they are a second or third class citizens। भावें वो घर विच होवे, वो घर भी तबाह हो जाता, भावें हो कम्यूनिटी विच होवे, भावें हो किसी देश विच होवे। This is what Sikhs are after. साडी history from 1469 to now is we do not believe in second or third class status. We believe everyone should be treated with respect and dignity. आर्म सर्विसेज एक्ट भी पास होया, उसका मतलब की सीगा, सिखां की गिनती बहुत सी आर्मी दे विच उन्होंने पास करता टारगेट। दिस इज व्हाट वी कॉल जिम क्रो लॉज इन अमेरिका। सो द बिल वाज पास
that the percentage of population which can serve in the army should be equal to their percentage of population in the country. Obvious targets are 6. ਅਸੀਂ 2% ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬਟ what you might not know is in British India we had a Anand Marriage Act in independent India so called it was repealed and replaced by Hindu Marriage Act in 1951 ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ 1909 ਵਿੱਚ I think 1909 ਵਿੱਚ आनंद कारज एक्ट पास करता सी आज जो तुसी हिंदुस्तान में ब्याह कराते हो जमदे हो तुहाडा मैरिज सर्टिफिकेट ते बर्थ सर्टिफिकेट तुहाडे उत्ते फोर्सफुल आइडेंटिटी पा रहा कि तुसी हिंदू हो एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैवल ते साडे नाल